morning student. Beta, this is the revision video of chapter 1, and in chapter 1 we will learn all about numbers. In your class you are to learn counting numbers up to 4 digits. आपको कितने डिजिट्स की काउंटिंग लर्न करनी है? 4 डिजिट की काउंटिंग लर्न करनी है. ओके बेटा, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न about how to read number name, how to write number, how to write place value of any digit, expanded form. We learn how to compare the numbers, even and odd numbers, and pattern. So first of all we will learn how to read a number of 4 digit. 4 digit का number कैसे read करते हैं? In words. Number name, how to read the number in words. Suppose if you want to read this number, अगर आपको ये नंबर रीड करना है तो फर्स्ट वी राइट प्लेसेस नेम, वंस, टेंस, 100, 1000. ओके, तो 4 डिजिट नंबर वी रीड इन थाउजेंड्स. दिस 1000 प्लेस वी रीड सेपरेटली. तो हाउ वी रीड 2000. 100 place also we read separately. 500. Then ones or tens we read together. So what we read it 60. See one time. When we have 1 digit counting, जब आपके पास 1 digit counting होती थी तो this is what 0. After 1 digit counting there is 2 digit counting. So how we read? We read together. So this is 60. And after 2 digit counting there is 3 digit counting, and how we read? 560. And after 3 digit counting there will be 4 digit counting, and how we read it? 2560. 1000 place we read separate, 100 place we read separate, and ones or tens we read together. Okay, so in this way we can read more numbers. Okay, now we learn how to write number. Suppose one number is, number name I am writing 2400, and you have to write its number. How you write beta? Your number name is starting from 1000 place. So first you write all places up to 1000. Ones, tens, 100, 1000. And number name contain 1000. It means it is 4 digit number. जब number name में 1000 होता है तो it means वो 4 digit का number है, because 1000 number have 4 digit, and 4 digit number we read in thousands में पढ़ते हैं. तो 1000 से पहले what written? 2. तो it means 1000 में what you write? 2. देन 400. तो आप 4 को किस में राइट करेंगे? 100 में, बिकॉज 100 से पहले व्हाट रिटर्न? 4. तो 4 का प्लेस क्या है? 100. तो वी राइट इन 100 प्लेस दिस 4. एंड नाउ दिस इज नॉट 2400. ये 2400 नहीं है. सिर्फ प्लेसेस में राइट करने से ये 2400 नहीं बनेगा, क्योंकि 1000 वाला जो नंबर है वो 4 डिजिट का होता है, तो ये तो 2 ही डिजिट हुए. So ones or tens not given na. If any place not given, तो what you put? 0. Okay. One more number if you want to write. Suppose you are to write this number 7008. Again this is 1000 number, means this is 4 digit number. You are to write 4 digit number. तो 7000. तो 1000 में what you write? 7. और then what written here? Only 8. There is no place mention. तो सिर्फ 8 है. It means 100 का प्लेस आपको मेंशन नहीं है, तो 100 पे आप क्या पुट करेंगे? 0. एंड दिस इज 8 इज सिंगल डिजिट नंबर. जब सिंगल डिजिट नंबर होता है तो यू विल राइट ऑलवेज इन वंस प्लेस. ओके, एंड टेंस प्लेस ऑल्सो नॉट गिवन हेयर, तो वट वी पुट हेयर? 0. तो दिस इज 7008. You will not write like this 78. This becomes तो 78. और सिर्फ प्लेस में लिखने से भी ये 4 डिजिट नंबर नहीं बन जाएगा.
द प्लेसेस विच आर नॉट मैंशन देयर यू आर टू राइट 0, आपको 0 लिखनी होती है। ओके, नाउ आई विल टीच यू हाउ टू राइट प्लेस वैल्यू। बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस। इफ यू वॉन्ट टू राइट प्लेस वैल्यू 4 इन दिस नंबर, तो देखो देर आर 2 4s ना, 2 4 हैं। सो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर इट लाई। अब ये 4 कौन से प्लेस पर है, 1s पर, और ये 4 कौन से प्लेस पर है, 1000 पर। तो इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हाउ, 1s मीन्स आपके पास 1 के 4 कॉइन है, 1 रुपीज़ के 4 कॉइन है, तो आपके पास कितने रुपीज़ होंगे, 4 रुपीज़ ही होंगे। अब सेम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 4। अब आपके पास 1000 के कितने नोट हैं, 4 नोट हैं, तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 1000 के 4 नोट होंगे तो इट बिकम्स 4000, है ना। और जब आप इसको रीड करते हैं, इसको 4 रीड करते हैं, 4000 रीड करते हैं। इसको 4000 क्यों रीड करते हैं, क्योंकि लिए ये 1000 प्लेस में है, तो इसकी वैल्यू भी 4000 होगी। अब जैसे आप जिस विलेज में रहते हो तो आप उसी विलेज के बच्चे कहलाओगे ना, जिस क्लास में आप रीड करते हो उसी क्लास के बच्चे कहलाएंगे। 3rd क्लास में पढ़ते हो तो 3rd क्लास के बच्चे कहलाएंगे। नेक्स्ट ईयर जब आप 4th में हो जाओगे तो आप 4th क्लास के बच्चे कहलाओगे, है ना। तो सिमिलरली 4 तो सेम है और बच्चे तो आप भी सेम हो, बट जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते जाएंगे तो आप उस क्लास के बच्चे कहलाए जाओगे। तो ऐसे ही जो ये 4 है, 4 अगर 1s प्लेस में है तो 1 आपके पास 1 के 4 कॉइन है, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पर 4000 4 टाइम है, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। ओके, तो लाइक दिस वी फाइंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट डिपेंड्स ऑन द प्लेस इन विच प्लेस इट लाई। जिस प्लेस में ये होता है उसकी वैल्यू उतने टाइम इंक्रीज हो जाती है। ओके, 100 प्लेस पर है तो उस डिजिट की वैल्यू 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। 1000 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू 1000 टाइम इंक्रीज हो गई। ओके, नाउ वी लर्न एक्सपेंडेड फॉर्म। यस बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू आर सेम थिंग, ओनली वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। इनका लिखने का तरीका अलग होता है, बट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी डिजिट और प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर इट लाई। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स ओपन द नंबर। आपको इस नंबर को क्या करना है, ओपन करना है। और हाउ यू ओपन दिस नंबर, दिस नंबर यू विल ओपन डिजिट वाइज, प्लेस वाइज। जैसे आप जो रबड़ बैंड होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ना, स्ट्रेच करके। तो ऐसे ही इसको भी हम स्ट्रेच करके ओपन कर देंगे। स्ट्रेच कैसे करेंगे, प्लेस वाइज। तो हाउ मैनी थाउजेंड्स यू हैव, 4000 यू हैव, तो वी राइट हियर 4000 एंड 3 व्हाट वी हैव, 300 है, तो व्हाट वी राइट हियर 300 एंड व्हाट वी हैव 1 10, हमारे पास 1 है ना, तो 1 10 प्लस 1 हमारे पास क्या है 4, तो 4 1s। ओके, एंड गोट बेटा, तो इन दिस वे वी फाइंड एक्सपेंडेड फॉर्म एंड लर्न वन थिंग मोर। जब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आपको ये नंबर फॉर्म करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आप प्लेस वाइज बताएंगे कि आपको 1000 कितने चाहिए 4, और 100 कितने चाहिए 3, 10s कितने चाहिए 1 एंड 1s कितने चाहिए 4। देन यू कैन फॉर्म दिस नंबर। इनमें से कुछ भी नहीं होगा आपके पास तो यू कांट मेक सेम नंबर, यू कांट फॉर्म सेम नंबर, आप सेम नंबर नहीं बना पाओगे। ओके बेटा, नाउ वी लर्न कंपैरिजन। yes, comparison means to tell which is greater or which is a smaller number। बेटा when we compare ना, we follow 2 rules, हम 2 rules फॉलो करते हैं। the first rule is first we count the
डिजिट इन द नंबर। पहले नंबर्स में हम डिजिट्स काउंट करेंगे। सी हेयर, if we want to check which number is greater, तो first we count the digit. So how many digit this number have? This number have 3 digit. And how many digit this number have? 4. The number with more digit is greater number and the number with less digit is smaller number. तो इसमें 4 digit हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर। और ये नंबर में 3 डिजिट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। और लिसन वन थिंग, जो नंबर ग्रेटर होता है तो वी ओपन द माउथ ऑफ दिस सिंबल टुवार्ड दैट नंबर विच इज़ ग्रेटर, क्योंकि दिस इज लाइक अ क्रोकोडाइल माउथ। ये क्रोकोडाइल माउथ के जैसा होता है। क्रोकोडाइल के दोनों साइड फिशेज हैं, इस साइड तो 1210 फिशेज हैं और इस साइड 817 फिशेज हैं। तो क्रोकोडाइल पहले कौन सी फिशेज खाएगा? जो ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा ये वाला नंबर था ना, तो इस साइड इसका माउथ ओपन कर देंगे। ओके, नाउ वन मोर पार्ट आई एम टीचिंग। How we compare? First we count the digit. In D part again we count the digit. Digits are equal in both numbers. When digits are equal in both number, so we compared from forward. हम आगे से compare करेंगे। तो from forward what written here? 8 and in this number what written here? 7. तो 8 is greater और 7 is greater? 8 is greater, so no need to go further. अब आपको आगे नहीं जाना। When यू कंपेयर फ्रॉम फॉरवर्ड, जब आप आगे से कंपेयर करते हो ना, तो वैन नंबर वेरी, जब नंबर वेरी करता है, अलग हो जाता है, अलग दिखता है, तो वहीं पर आप स्टॉप करेंगे, वहीं पर आप कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो 8 बिग होता है 7 से, सो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। सी वन मोर पार्ट, देखिए, इन दिस ऑल्सो 4 डिजिट, इन दिस ऑल्सो 4 डिजिट। जो 4 डिजिट है तो वी कंपेयर फ्रॉम फॉरवर्ड। सी हेयर, फर्स्ट डिजिट इज 5 इन बोथ नंबर, सो वी हैव टू मूव फर्दर, हमें आगे चलना पड़ेगा। यस, दिस 7 एंड दिस 7 अगेन वी हैव टू मूव फर्दर। जब तक आपका नंबर वेरी नहीं करता, अलग नहीं होता, तब तक आपको ऐसे आगे मूव करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट नंबर इज 3 एंड हेयर इज 5, तो 5 इज ग्रेटर और 3 इज ग्रेटर? 5 इज ग्रेटर ना, सो नो नीड टू मूव फर्दर। अब आपको आगे नहीं जाना। 5 इज ग्रेटर, 3 इज स्मॉलर, तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। वी put the sign toward this number. Okay, and beta in ascending or descending order also we are to arrange a number in smallest to greatest or greatest to smallest form. तो कंपैरिजन जब आपको आ जाएगी तो आप इजीली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी राइट कर सकते हैं। ओके बेटा, सो इन दिस वीडियो वी डू अप टू हियर। बाय बेटा।